Morning, sir. Very good morning. So, how are you? Good, sir. How are you? I'm also fine. Thank you. Thank you, sir. So आज मेरे साथ अस्तित्व प्रकाशन के लाइव इंटरव्यू में है रामचंद्र ओझा जी, जिन्होंने अपनी बुक लिखी है ग्रीन ओवर रेड। तो आज हम उनसे उस बुक के बारे में और उनके बारे में थोड़े क्वेश्चंस पूछेंगे। तो सर, माय फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द रिलीज ऑफ योर बुक। It was really a good book. I read it, and it's really about a lot of things that I liked about this book. So we will discuss this during the interview. Thank you so much. I'm surprised that you have read this book because most of the time people do not read the book, but they ask questions about the book. So it's fine. I'm very glad that you have read it. Yes, sir. Okay, so my first question is, what inspired you to write this book, Green Over Red? Actually, this Green Over Red, written by me, initially this book was written in Hindi by title Bisaria. Yes, sir. It was very popular at that time, and the people requested me that you should write it in English also. You could get it translated into English also. So that inspired me to get it translated into English. But so far, writing this book is concerned. Why did I write this book? Actually, the idea was to dispel certain wrong notions which were prevailing among some intellectuals, that in West Champaran, the situation was like Bengal, and there was class conflict, and due to that class conflict, dacoity, and the crime criminality, there was an upsurge of crime and criminality. This was a wrong reason. So I had to dispel it because my experience were a bit different. While I was deputed in Black Panther operation, I went through the operation, and I was day to day, and I went through certain researches about the area and the situation. I found that this was not the case. It was simple feud. The crime over there in West Champaran erupted because of some reasons. Number one was there was a permit system in the issue. There was a permit system for purchasing sugarcane by the government. There were 4 or 5 sugarcane factories, but the middleman took the advantage, and the real persons who produced the sugarcane were deprived of this opportunity. So the enmity arose. Gradually, it turned into bitter one, and finally happened that one person was killed, then again followed by another person, and the crime gradually crime and criminality gripped this entire area. तो पहले ये हुआ कि वो ये जो इसको लेकर के जो एनिमिटी आई, ईर्ष्या हुई लोगों में कि साहब हम ये करते हैं, पैदा करते हैं, और हमारे सारे मेहनत का फल ले लेते हैं बिचौलिए। तो जो सेक्रेटरी होते थे उस एरिया के, उनसे एनिमिटी हुई. द सेक्रेटरी वाज फर्स्ट किल्ड, and the person who killed the secretary, he went to jungle. Police followed him, and this had a perpetual effect of growing crime. Some family feud are also there. So you know that in local villages, some sort of in day-to-day life, some enmities are there. So some case of murder happened. कुछ हुआ, उस वहां पर मर्डर हुआ 1-2 आदमी का, और वो जो मर्डर जिन्होंने किया वो जंगल पकड़ लिए, जंगल आ गए, तो जंगल gave shelter to the criminals, or gradually they enjoyed this, no? So the case of Betia, West Champaran, it was quite different. There was no class conflict. So I had to dispel this idea which is prevailing among the intellectuals, that the criminality over there was the result of class conflict. Right? Okay. Yeah.
So my next question is, the novel you have written deals with complex societal issue, and how do you think the balance between good and evil is portrayed in this story? Sakshi ji, there is no question of balancing good and evil. Good is good, evil is evil. And Yes, sir. good is behavior और सर्टेन एक्शन. कुछ काम होते हैं जो अच्छे होते हैं, कुछ बिहेवियर होते हैं जो अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं. तो ये इसके बैलेंस करने का मकसद नहीं है. इसको गुड एंड एविल को बैलेंस करने का मकसद नहीं है. गुड इज गुड, एविल इज एविल. अब इस उपन्यास का कंटेक्स्ट क्या है गुड और एविल का, कि जब आप व्हाइल यू आर डीलिंग विथ एविल, तो उस समय आपको ह्यूमन वैल्यूज को किनारे नहीं करना चाहिए. पुलिस में खास करके, पुलिस में ऐसा होता है कि जब आप क्राइम और क्रिमिनलिटी से डील करते हैं, किसी डकैत से डील करते हैं, किसी को इंटरोगेट करते हैं, तो इन हेस्ट आप थर्ड डिग्री मेथड पर निकल जाते हैं. और Yes, उसमें sir. बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें टॉर्चर्स इत्यादि सब किए जाते हैं. तो मेरा कहना है कि पुलिस, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स. सो व्हाइल डीलिंग विद दिस एविल, you should be careful and you should treat them also as a human being. So good and evil, there is no balancing of good and evil. How to treat evil is a question. Yes, sir. Evil as such should not be hated because it's evil and we should eradicate the person. That should not be the approach, particularly the police and police professionals. Yes, sir. It's a good thing. And sir, can you elaborate the symbolism of green over red? Why did you choose green over red as a title in this novel? Actually, green over red is a symbolic one. So, Yes, sir. and it's a little offbeat. The people ask why this is green over red. Why not red over green or anything else? Yes, sir. So actually, as we all know, that green symbolizes peace, greenery, and prosperity, and red symbolizes bloodshed and violence. Yes, sir. So green over red is a symbol of so many things, which which readers can themselves investigate what is there that the writer has given this title green over red. Whether it is restoration of peace in Betia or in West Champaran, or Yes. whether it was the comeback, whether it was the disillusionment of Abhigyan Yes. from his revolutionary attitude, Yes, sir. who was involved in making bombs and all that, in which he loses his 3 fingers. So he adopted a violence, means he was brainwashed and he joined, Naxalbari. So Yes, sir. the reader had to judge whether this is the restoration of peace, whether the comeback of Abhigyan or disillusionment. They have to judge it because they are the best judge. However, for policing, green over red has a different connotation. Actually, when we go for an operation, so in course of operation, dealing with say in jungle, in hideouts, so we had to make certain symbols to we cannot talk with our fellow men directly because they are spread in the jungle. Yes, sir. So green over red is a flare of Okay. which is fired by a very light pistol. Yes, sir. That is fired only after the completion of a operation. That look, the operation is over. Now you come to this point, you all assemble on a pre-decided rendezvous.
So this is for policing. The policing, it's a signal, and so there are multiple meaning you can judge here. Yes. So that So, is all. sir, yes. And sir, you say I have read that you used to be a police officer and now you are a writer. So I want to know how that journey started from being a police officer to a writer. The journey from police officer to a writer is not इस एक्चुअली ऐसा नहीं है कि जो पुलिस ऑफिसर होगा और वो एक राइटर भी होगा और उसका स्विच ओवर वो राइटिंग में भी होगा, तो ऐसा तो नॉर्मली ये हर मामले में होता नहीं है, Yes. अनलेस यू हैव राइटिंग कैपेसिटी or some inspiration from your within to write something. You feel like saying things to others that look, here I am a police officer, I have experienced such a thing that I want to enumerate to the society. मैं सोसाइटी से बताना चाहता हूँ कि मेरे अनुभव में ऐसे ऐसे कंट्रोडिक्शंस आए, ऐसे ऐसे सिचुएशंस आए जिसको आपको भी जानना चाहिए, और आपको जानना चाहिए कि पुलिस ऑफिसर्स के बारे में जो धारणाएं हैं कि पुलिस ऑफिसर्स वो क्रूएल होते हैं, वो हमेशा ऐसा नहीं होता। उनके वो भी Yes. एक ह्यूमन बीइंग है और एट टाइम्स दे आर वेरी इमोशनल, और Yes, sir. और वो ऐसे सर्कमस्टांसेस में होते हैं कि दे फॉल सिक, वो बीमार भी पड़ते हैं। और देव Yes. जो है, देव का स्टोरी जो है वो इन कोर्स ऑफ हिज ड्यूटी वो बीमार पड़ता है Yes, और sir. ही शॉक्ड टू सी द थिंग्स, Yes, sir. क्योंकि जो चीजें ग्राउंड पे होती हैं, जो चीजें हम लोग किताब में पढ़ते हैं, वो दोनों में बहुत फर्क होता है। तो Yes, sir. इसलिए जो वो देखता है जमीन पर, तो जो चीज कल्पना नहीं किया होता है पहले, एक उसका एक एक इमोशनल मन कि ऐसा होना चाहिए, और वो देखता है तो उसको बहुत शौक लगता है और वो बीमार पड़ जाता है। Yes, sir. Dev. So, sir, next question is Dev and Abhigyan. They have taken different path in the stories of their life, and how do their journey reflect the broader societal struggle in the book? Actually, it's a chance. It's a chance that Dev becomes a police officer. Both these Dev और अभिज्ञान जो है दोनों, they are friends in college Yes. friends, और देव पुलिस ऑफिसर हो जाता है, और Yes. और अभिज्ञान उसका ब्रेन वॉश होता है और वो मार्क्सियन आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर के वो नक्सलवादी मूवमेंट में ज्वाइन करता है। तो ये जर्नी कोई सोसाइटल जो स्ट्रगल है वैसा जर्नी नहीं है। Yes, sir. इट्स एन एक्सीडेंट दैट अभिज्ञान फॉल्स प्रे टू द आइडियोलॉजी। तो ये Yes, sir. स्टोरी जो है ये उस स्ट्रगल की स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है कि हाउ कैसे वो अभिज्ञान उसके कैसे वो चला जाता है नक्सलवादी मूवमेंट में। वो ये स्टोरी उसके बारे में बताती है, कैसे उसका वो ज्वाइन करता है नक्सलवादी, कैसे वो देखता है, ड्रामा देखता है मार्क्सियन आइडियोलॉजी के बारे में। वो शांति गोपाल और वो बंगाल में जो यात्राएं होती, यात्रा बोलते हैं उसको, जो कुछ नाटक की तरह होते हैं खुले मैदान में, तो वो देखता है और बहुत इन्फ्लुएंस होकर के उस आइडियोलॉजी की तरफ जाता है। वो बहुत ही मेधावान छात्र है वो अपने अपने स्कूल का, लेकिन वो अट्रैक्ट हो जाता है। सिस्टमेटिकली उसका ब्रेन वॉश होता है, अपने कॉलेज का बहुत अच्छा स्टूडेंट होता है, वो केमिस्ट्री का छात्र होता है और उसमें ज्वाइन करता है। तो ये स्टोरी जो है वो उसके स्ट्रगल का नहीं है, बल्कि उसको जो वो जो उसके पेंटिनेंस का स्टोरी है कि वो देखता है कि हम कैसे उसमें हमारा ब्रेन वॉश हो गया कैसे, और जब वो रियल सिचुएशन से वो उसका काफियत होता है, जब उसको जानने का अवसर मिलता है, तो वो
डिसइल्यूजनमेंट होता है और उसको कन्फेस करता है कि हमसे कहाँ गलती हुई। ये वो स्टोरी है। और देव एज यूजुअल अपने आइडियल्स को लेकर के ये भी इमोशनल, और एक इमोशनल यूथ है, बहुत इमोशनल कैरेक्टर है। वो पुलिस ऑफिसर बनता है, और लेकिन जब काम करने जाता है तो उसको बहुत सारे ऐसे सिचुएशन मिलते हैं जिससे उसका उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। यस तो ये इस तो ये उसके हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, किस घटना से हुआ, ये उसकी पूरी गाथा है इसमें, और उसने क्या क्या यस सफर किया इसमें, और वो उसकी पूरी स्टोरी इसमें कवर होती है ग्रीन ओवर रेड में। तो ये है, यस सर। ये सोसाइटल स्ट्रगल नहीं है, बल्कि ये इंडिविजुअल स्ट्रगल है, एक तरह से कह लीजिए, दोनों, बोथ द करेक्टर्स। Yes, sir. गॉट इट? दिस इज द केस। Okay. So, this story starts from the West Champaran and moves to the West Bengal. So, how did this location shapes the characters and the narratives? एक्चुअली वो लोकेशन शिफ्ट होने से उसका करेक्टर और वो नैरेटिव और ये सब शिफ्ट नहीं होता है। एक्चुअली इसमें स्टोरी क्या है, जो करेक्टर जो बिल्डिंग है वो एज सच फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एज सच नॉवेल उस तरह से शुरू नहीं होता है, बल्कि नॉवेल शुरू होता है एंड से बिगिनिंग की तरफ जाता है। Yes, sir. तो वो सारा चीज फ्लैशबैक में जाता है। तो Yes. और इनफैक्ट जो स्टोरी जो देव एक तरह से रिवील करता है, वो जो एक्सपीरियंस किया है वो डॉक्टर को रिवील करता है। Yes, sir. इन कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट डॉक्टर उससे बहुत सारे सवाल पूछते हैं और उसको वो रिवील करता है। तो Yes, sir. उसी के तहत वो कहानी कहता है, और उसी के तहत वो फ्लैशबैक में जाता है अपने कॉलेज डेज के बारे में। कॉलेज डेज जब वहां जाता है और फिर वो रिमेम्बर करता है, और रिमेम्बर करता है कि हमारा जो अभिज्ञान था उसकी कहानी भी कहता है कि बंगाल में कैसे था और क्या था, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर, हम वहाँ हमारे साथ वो पढ़ता था, ऐसे हुआ। सारी स्टोरी वो एक एक करके वो पूरी पूरी खोलता है वहां पर डॉक्टर के सामने। एक्चुअली वो उसको कन्फेस करता है। Yes, तो sir. उस सेटबैक को कहता है। तो रिमेम्बरेंस ऑफ द पास्ट, जो कैरेक्टर का जो डेवलपमेंट है वो रिमेम्बरेंस ऑफ द पास्ट के रूप में होता है। Yes, sir. जैसे जैसे देव का लाइफ है, वो विलेज को बिलोंग करता है देव। तो उसकी ग्रूमिंग होती है गांव में, गांव एरिया में होती है। Yes, sir. तो वो उसको रिमेम्बर करता है कि कैसे हमारे उसके इमोशंस कैसे डेवलप होते हैं, और जिसके कारण, जिस इमोशन के कारण जब वो पुलिस का काम करने जाता है तो वो प्रोफेशनल उस वे में नहीं होता है जिस वे में दूसरे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। Yes, sir. वो रूटीन वे में वो नहीं देखता है चीजों को, बल्कि अपनी भावनाओं के तहत उन चीजों को देखता है। और ये भावनाएं उसको मिली है उसके कैरेक्टर से, उसका हुआ है जो जहां से उसकी ग्रूमिंग है। तो Yes, sir. ये इसकी शिफ्ट का, ये इसके शिफ्ट की यही कहानी है इसमें। ठीक है। Yes. तो कैरेक्टर डेवलपमेंट, तो मेरा एक क्वेश्चन है, हाउ डिड यू गेट द आइडिया ऑफ द नेम्स ऑफ देव एंड अभिज्ञान, एंड हाउ डिड यू डेवलप देयर कैरेक्टर फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड? पार्डन, आई एम सॉरी। Did you how did you get the idea of their name, Dev and Abhigyan, and how did you develop their character from beginning to end? What was the inspiration behind their characters? The inspiration behind their character was, I told you, as I replied you in the last question, that they were both were emotional and very intelligent people.
So, Yes, sir. so and how this their emotions was developed, in which circumstances. Say Abhigyan was brought up in a urban society. He's son of a वकील. He's a pleader. वो उनके पिता जो होते हैं और उनको वकील भी बनाना चाहते हैं और Yes, उनको भेजते हैं बाहर पढ़ने के लिए। और तो कैरेक्टर उनका जो बनता है वो शुरू तो अपने वातावरण में बनता है, yes, अपने घर के वातावरण में बनता है, अपने माहौल में बनता है, लेकिन बाद में उनका कैरेक्टर बनता है जब वो कॉलेज में फर्स्ट ईयर अपने टीन्स में ही, मतलब विद इन हिज टीन्स, जब वो जाते हैं बाहर में, तो वहां पर लड़कों के साथ मिलने के बाद उनके कैरेक्टर में चेंज आता है। ठीक yes, है। और देव का भी करेक्टर वही है, जिस तरह से अभिज्ञान का डेवलप होता है उसी तरह से वो देव देव विलेज से आता है, फिर कॉलेज आता है, तो कॉलेज में वो अभिज्ञान के साथ होता है, बंगाल में होता है। तो वो देखता है सारे जो नक्सलवादी, जो लेट 60s का जो नक्सलवादी मूवमेंट है उसको वो क्लोजली yes, sir. देखता है उसको, और इंटरेक्शन भी उसका अभिज्ञान से है। तो Yes, जब sir. यहाँ से वो पुलिस ऑफिसर बनता है, यहाँ से निकल के जब पुलिस ऑफिसर बनता है, तो ये कंपेयर करता है कि ये जो Yes, sir. वहाँ का कॉज है और यहाँ का कॉज है, क्या इसमें कोई सिमिलरिटी है। Yes, sir. तो टू ही सरप्राइज ही फाइंड्स कि नहीं साहब, इसका कोई सिमिलरिटी नहीं है, वो केस आइडियोलॉजी ओरिएंटेड केस है, और यह जो केस है ये सिंपल जो ऐसे ही क्राइम यहाँ पर होने लगा, और यहाँ का टोपोलॉजी जो है सपोर्ट करता था क्राइम को, वो बिकॉज ऑफ हिली एरिया ऑफ नेपाल, जंगल थे और सब कुछ। तो इससे वहाँ क्राइम धीरे धीरे बढ़ता है और क्राइम एक्सटेंड करके फिर किडनैपिंग में बदल जाता है, किडनैपिंग फॉर रैंसम। तो ये इजी प्रोसेस है उनके डकैतों के पैसा अर्न करने का, कि किडनैप कर लो किसी को, घर में तो पैसा नहीं भी हो सकता है, तो वो Yes, कहीं sir. से ये करके और पैसा लाएगा। लेकिन इसमें एक आप उपन्यास जब पढ़ेंगी तो आपको उसमें एक कंट्रडिक्शन आएगा कि डकैती से किडनैपिंग में जो स्विच ओवर है, जो बदलाव होता है, उसमें एक एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका है, सीनियर पुलिस ऑफिसर की भूमिका है, जो Yes, कहते हैं कि तुम्हें डकैती करने से हमको बहुत जवाब देना पड़ता है, क्योंकि डकैती का जो क्राइम वैल्यू है वो ज्यादा है, तो व्हाई डोंट यू गो yes, फॉर दिस किडनैपिंग, तुम किडनैपिंग yes, क्यों नहीं करते। ऐसा ऐसा एक एक आरोप लगता है किसी पुलिस ऑफिसर yes, पर कि उनके कारण डकैती जो है उसका कन्वर्सन जो है वो किडनैपिंग में हो जाता है, एबडक्शन और किडनैपिंग में। yes, और उसके बाद इस जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो लोग जाके मिलते हैं, उस समय राजीव गांधी की सरकार होती है वहाँ सेंटर में, उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि साहब ये किडनैपिंग इतना बढ़ गया है कि इसमें कुछ इसका रिड्रेसल चाहिए। तो वो स्टेट गवर्नमेंट को, वहाँ उस समय बिंदेश्वरी दुबे की सरकार होती है, कांग्रेस की सरकार, और वो वहाँ उनको एडवाइस करते हैं कि आप कोई स्पेशल ऑपरेशन चलाइए। तो पुलिस उसका ऑपरेशन चलाती है, उसका नाम होता है ऑपरेशन ब्लैक पैंथर, और देव उसके अंदर में उस सिचुएशन से हैंडल करने के लिए भेजा जाता है। दिस इज द स्टोरी। आई थॉट, आई थिंक आई एम क्लियर। yes, sir. And you show that the mean of eradicate evil often backfire. So, what message do you hope readers take from this? Actually, I do not want to give any message to the readers. Readers are free to form their own opinion. I simply Okay. say that the use of force and violence worsen Yes, sir. this worsen things, and make life miserable. Yes, sir. You got it? So Yes, sir. one can try changing the world, but not at the cost of human values. Yes, sir. So this is the reply of your question. Yes, sir.
एंड सर देव और अभिज्ञान दोनों के दोनों हीरो रहते हैं, बट अल्टीमेटली उनके इनर जो कॉन्ट्रडिक्शन रहता है उनसे वो डिफीट होकर के एट द एंड काफी चेंज होते हैं। तो आप एक हीरोइज्म के बारे में क्या पोर्ट्रे करना चाह रहे थे? देखिए, हीरोइज्म के बारे में वैसा पोर्ट्रेयल यहाँ वो हीरो जानबूझ करके नहीं है। दे आर सिंपल फेलो, दे आर सिंपल यूथ, है ना, दे आर यंग पीपल। यस तो वो हीरोइज्म में बहुत ज्यादा वो जानबूझ करके हीरोइज्म दिखाने के लिए नहीं जाते हैं। यस लेकिन ये का अच्छा, चूंकि एक अच्छा पढ़ा लिखा युवक जो इंटेलिजेंट है, इमोशनल है, और वो कुछ चाहता है कुछ करना, तो वो बहुत सारे ऑप्शंस की तलाश करता है। तो जो उसको ऑप्शंस मिलते हैं उसकी तरफ वो जाता है। ठीक है। तो अब तो जैसे अब रिवॉल्यूशन की बात है कि साहब रिवॉल्यूशन, कुछ लोग रिवॉल्यूशन में विश्वास करने लगते हैं कि साहब रिवॉल्यूशन जो है रिवोल्यूशनरी मीन्स ठीक होगा या क्या होगा, कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए, रिवोल्यूशन एक तरीका है चेंज का। रिवोल्यूशन इज ऑल्सो ए मीन्स ऑफ चेंज, है ना। लेकिन है क्या कि रिवोल्यूशन इज द लास्ट रिजोर्ट। यस सर, रिवोल्यूशन इज द लास्ट रिजोर्ट। और यह भी देखना होता है कि जब हम कोई रिवॉल्यूशन करने जा रहे हैं, रिवॉल्यूशन हमेशा वायलेंट मींस को ही इंडिकेट करता है। ठीक है। तो क्या सिचुएशन रिवॉल्यूशन करने के लिए हमें बाध्य करता है? क्या कोई हमारे पास दूसरा जरिया नहीं है, कोई दूसरा मीन्स नहीं है जो कि हम एडॉप्ट करें और हम समाज को बदलें? क्या हम ह्यूमन वैल्यूज को बदल के, माइंड सेट को बदल के और दूसरे तरह के आंदोलन चला करके हम परिवर्तन नहीं ला सकते हैं? जैसे कि मैं उदाहरण देता हूं कि जैसे रिवॉल्यूशन एक ही हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन था, दैट वाज फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था वह था डेस्पोटिक रूलर के अगेंस्ट में, जो कि किंग्स के खिलाफ में था और डिस्पोटिक किंग्स के खिलाफ में था। और राजतंत्र को समाप्त करना चाहते थे। इसलिए समाप्त करना चाहते थे कि रूलर्स जो थे वो डिस्पोटिक थे, निरंकुश थे, वे जनता का ख्याल नहीं करते थे और जनता का कोई राइट नहीं था, क्वालिटी नहीं थी लोगों में, एरिस्टोक्रेसी में और दूसरे वर्ग के लोगों में, निचले गरीब तबकों में कोई एरिस्टोक्रेसी नहीं थी। तो दूसरा कोई मीन्स नहीं देख करके जो वहां के थिंकर्स ने इस रास्ते को प्रपोंड किया, उसको बताया कि साहब ये एक रास्ता है रिवॉल्यूशन का। ठीक है। लेकिन जब आपके पास कोई दूसरा मीन्स हो बदलने के लिए चीजों को, जैसे डेमोक्रेसी में आप इलेक्टोरल मीन्स से चीजों को बदल सकते हैं। जनता की भावनाओं की कद्र करते हुए आप पॉलिसी बना करके समाज को बदल सकते हैं। तो रिवॉल्यूशन की तरफ जो हमारा आकर्षण है, इसका कोई बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं रह जाता है, बहुत ज्यादा कोई इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है कि हम रिवॉल्यूशन के थ्रू ही चेंज करना चाहें। इसमें रिवॉल्यूशन में एक और बात जानना चाहिए कि रिवॉल्यूशन और कू, यानी कू जो होता है, जो तख्ता पलट, ये दोनों एक चीज नहीं, दोनों दो चीज। ठीक है। तो ये जो है रिवॉल्यूशन के बारे में हमारे यहाँ जो ख्याल है कि साहब रिवॉल्यूशन से समाज बदलता है, तो ये क्लैरिटी नहीं होने के चलते हम लोग इसको बातचीत में करते हैं कि साहब रिवॉल्यूशन होना चाहिए, विदाउट नोइंग कि साहब ये रिवॉल्यूशन किस जगह करना लिए कोई ऐसा सिचुएशन है या नहीं। तो ये इस केस में भी जैसे वो बाद में जब रिपेंट करता है अभिज्ञान, तो इन सब चीजों को वो खोलता है। ठीक है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। यस सर। सो
you have written several well-known literary magazines and जो भी सोसाइटल इशू रहता है, आपको क्या लगता है कि लिटरेरी मैगजीन्स के थ्रू या फिर हम लिटरेचर के थ्रू उसे चेंज कर सकते हैं या फिर उस पे कुछ प्रभाव डाल सकते हैं? कोई लिटरेचर की कोई भूमिका चेंज नहीं करती, कोई भी आर्टिस्टिक वर्क से कोई चेंज नहीं होता है। इट्स इज रॉन्ग नोशन कि हम कोई किताब लिखेंगे या कुछ करेंगे तो चीज बदल जाएगी। इट्स रॉन्ग नोशन, ये आर्ट का फंक्शन नहीं है। आर्ट का रोल जो समाज पे है वो इनडायरेक्ट रोल है ना। ये आपको आपको बताता है कि चीजें हाउ थिंग्स आर। तो आपको एक्चुअली आर्ट का पर्पस जो है ये आपके इमोशंस को इवोक करना है, ये चेंज के लिए नहीं होता है ना। तो ये जो लोग जैसे कहते हैं ना कि आर्ट में ऐसा लिखा जाना चाहिए कि रिवॉल्यूशन हो जाए, ऐसे बदल जाए, ऐसे बदलाव नहीं होता है। आर्ट की भूमिका अदर वे राउंड है, वो परोक्ष है, वो इनडायरेक्ट है। वो आपको आदमी को बदलता है, उसकी भावनाओं को बदलता है, उसमें अच्छे अच्छे क्वालिटीज को स्थापित करता है अपने आर्ट के थ्रू। ठीक है, उसको सोचने के लिए बाध्य करता है कि हाउ थिंग्स आर। लेकिन यह सोचना कि लिखने से चीजें तुरंत बदल जाती हैं, ये सब मैं नहीं मानता। तो सर आप बिहार में पले बढ़े हैं एंड वहाँ के आप डिफरेंट फिर आप स्टेट पे घूमे हैं, तो आपको राइटिंग में ये चीजें हेल्प की है, ट्रैवल एंड ऑल दैट? देखिए, आदमी जो लिखता है, जो राइटर कोई भी कुछ लिखता है तो अपने अपने अंदर की चीजों को लिखता है। yes. तो आपका एक्सपोजर जितना वाइडर होगा yes, sir. और उतना ही आप एनरिच हो जाएंगे अंदर से चीजों के बारे में। लेकिन बेसिक जो चीज है वो आपका इमोशंस है, आपकी फीलिंग्स है। यदि आप में वो इमोशंस नहीं है, वो फीलिंग्स नहीं है, तो आप कोई आर्टिस्टिक वर्क नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा जो ये वर्क ऑफ आर्ट है, ये वर्क ऑफ आर्ट है, ये क्रिएटिव, ये कहिए एक तरह से आर्टिस्टिक क्रिएशन है ना, रचनात्मक ये क्रिया है। तो ये फैक्शन है, इट्स नाइदर ए फिक्शन नॉर एक्सप्लेनिंग ओनली फैक्ट्स, इट्स ए फिक्शन बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स। तो एक्चुअली जो फिक्शन होते हैं, जो फैक्शन होते हैं या केवल जो फैक्ट होते हैं वो 2+2=4 होता है फैक्ट, उसमें इमोशंस नहीं होते फैक्ट्स में। ठीक है, लेकिन जब वर्क ऑफ आर्ट तब होता है जब उसमें आप अपनी जान डाल देते हैं, अपने इमोशंस को डाल देते हैं, अपने स्पंदन को डाल देते हैं, अपने इनर वाइब्रेशंस को उस फैक्ट के साथ डाल देते हैं, तो वर्क ऑफ आर्ट वो क्रिएशन होता है तब। तो ये इट्स इम्पोर्टेंट थिंग टू नोटिस। यस। तो सर जब आपकी बुक पब्लिश हुई तो आपके फैमिली और फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था, क्या उनके रिव्यूज थे? फ्रेंड्स दे वर हैप्पी कि साहब, फैमिली में भी रिएक्शन था कि ठीक है, बेटा बोला कि पापा अच्छा ठीक है, इट्स अ गुड बुक, इट्स, तो दे वर ऑलवेज हैप्पी। और फ्रेंड्स को पहले से उम्मीद थी कि साहब ये लिखते तो अच्छा था, नहीं लिखते हैं ये गलत काम कर रहे हैं, he has lot of ideas, lot of things to write। तो उनकी भी प्रेरणा थी। कुछ लोगों ने चैलेंज भी दिया कि यू आर राइटिंग से आर्टिकल्स लिखते हैं इसमें मैगजीन्स में, लेकिन उन्होंने अदर वे कहा कि साहब लगता है कि आप उपन्यास नहीं लिख सकते हैं, स्टोरी नहीं लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा हमारे वजूद को थोड़ा धक्का भी लगा कि साहब हाउ इज इट कि मैं उपन्यास नहीं लिख सकता, मेरे अंदर सारा वो सब कुछ है। देन आई सैट एंड आई रोट, एंड टू योर सरप्राइज आई विल से कि वो जो मैंने उपन्यास जो लिखा था वो सिर्फ 3 महीने में लिखा था, ये पहला उपन्यास। तो
दिस इज द जर्नी ऑफ दिस, ये उपन्यास बिसरिया और फिर टू ग्रीन ओवर रेड, यही जर्नी है। यस। तो सर अभी आप कोई और किताब लिख रहे हैं इस वक्त या फिर सोच रहे होंगे लिखने के बारे में? हाँ, कुछ 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 है, आइडियाज है, लेकिन थोड़ा वो कुछ सिचुएशंस अभी नहीं उस तरह से मिल पा रहा ज़्यादा समय, क्योंकि आप उपन्यास लिखने के लिए आपको थोड़ी ज़्यादा देर तक बैठना पड़ता है, और कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स भी होते हैं, मदर हैं बीमार रहती हैं, उनको भी देखना होता है, तो बीच बीच में थोड़ा इंटरप्शन होता रहता है। दैट इज़ वाई वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, बट द प्रोजेक्ट इज़ देयर इन माई माइंड, और उसके लिए थोड़ा अफसोस भी होता है कि टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्या किया जाए। तो दिस इज द केस। और सर कभी आपको लिखते वक्त ऐसा हुआ है कि आपको ब्लॉक आया हो कि आपको अब आगे क्या लिखूंगा? आवाज स्पष्ट नहीं आई मैडम, आवाज आपकी। ओके सर, कभी लिखते वक्त आपको राइटर्स ब्लॉक आपने फेस किया है कि लिखते लिखते अचानक से आपको इच्छा खत्म हो जाती है या फिर कई बार इंस्पिरेशन नहीं मिल पाता है लिखने की? कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी नहीं मिलता है, लेकिन बहुत अभी तक वैसा बहुत कम हुआ है। तो यस। वो वो ट्रेंड चेंज कर देने पे, लेकिन वो फीलिंग आती है कई बार कि लगता है कि कुछ नहीं लिख पाएंगे आगे। तो लोग बोलते भी हैं कि ये राइटर्स ब्लॉक है वो, न? तो वैसा बहुत कुछ नहीं है, केवल ये है कि अगर बैठा जाएगा कुछ टाइम दे करके तो शायद वो खुल जाए ब्लॉक। यही यस। मेरी मेरी यही मतलब सोच है। दिस इज माय थिंकिंग। तो सर ऐसा कुछ चीज जो मैंने मेंशन ना किया हो इंटरव्यू में जो आप मेंशन करना चाह रहे हो? ऐसा कोई, आपने तो सारे सवाल कर लिए हैं, और यही है कि इस उपन्यास को पढ़ने की चीजें हैं, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक यस। उपन्यास केवल ये एक कहानी भर नहीं है अभिज्ञान और देव की। इसमें सोसाइटी से संबंधित, इसमें बहुत सारे डिस्कशंस हैं, और उससे गुजरना वो एक नया अनुभव होगा। और उसमें यस बहुत सर। सारी चीजें हैं, जैसे उपन्यास में ऐसे ऐसे चीजें हैं, जैसे नेमेसिस आता है इसमें कि साहब ये कैसे हमारा जो लॉ सिस्टम है कैसे प्रभावित हो करके हम रिट्रीब्यूटिव जस्टिस, मतलब एक आंख के बदले दूसरी आंख लेने वाला जो जस्टिस है जिसको नेमेसिस बोलते हैं, तो ये यस सब सर। आएंगे। फिर हमारे जो जो चेंजेस हैं लोगों में, मानसिक जो चेंजेस है, जैसे फेटिस है, यस। जैसे लड़कियों के बारे में बहुत सारा फेटिस है कि लड़कियों को ऐसा ही होना चाहिए। तो यस सर। ये सब चीजें उसमें थोड़ा सा डील की गई हैं विस्तार से। फिर बहुत सारी और भी चीजें डील की गई हैं, सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो उसके यस बैकग्राउंड सर। में बहुत चीज है, वो सारी चीजों को मैं बोलना नहीं चाहता, वो पढ़ के भी उसको समझा जा सकता है। लेकिन आई थिंक, और आशा है कि लोग पढ़ेंगे तो इसको एंजॉय करेंगे। और पहला मेरा यही कहना है कि ये वर्क ऑफ आर्ट है, इसको यस सर। अगर ये एंजॉय करना चाहिए। अगर ये आपकी भावनाओं को उद्वेलित करता है तो मुझे लगेगा कि मैंने अच्छा काम किया है। अगर ये आपकी भावनाओं को उद्वेलित नहीं करता, आपको पढ़ते वक्त मजा नहीं आता है, तो मैं समझूंगा कि मैंने बेकार अपना अपना सारा परिश्रम जो है मैंने मेरा वेस्ट है क्या। दैट इज ऑल। तो आपने कहा कि रिव्यू का जैसे की बात है अभी, तो ऐसा कोई रिव्यू आपको मिला हो, किसी ने कहा हो जो कि आपको बहुत अच्छा लगा हो सुन करके किसी रीडर के थ्रू? इस किताब की रिव्यू बहुत से आई हैं, जैसे कि दैनिक जागरण का रिव्यू छपा था। तो यस एक सर। जेंटलमैन, आपके ही इलाके के जेंटलमैन थे, तो उन्होंने लिखा था, पहला पहला रिव्यू उन्होंने किया था दैनिक जागरण के लिए। फिर हिंदी के राइटर्स ने, कई एक राइटर्स ने इसके रिव्यू में बहुत इसकी तारीफ की, इसकी कि ये बहुत दिनों के बाद ये इस तरह का आर्टिस्टिक वर्क, नॉवेल तो बहुत लिखे जा रहे हैं लेकिन उस आर्टिस्टिक फ्रेमवर्क में लिखा जाना, ये बहुत दिनों के बाद ये इस तरह का एक उपन्यास है। ये रिव्यू में लोगों ने इस बात का जिक्र किया है। तो अभी तक ऐसा नहीं मिला कोई रिव्यूअर जो कहे कि इसमें कोई क्वालिटी नहीं है, या रीडर भी ऐसा कोई नहीं मिला जो कहे कि हमको पढ़ने में मजा नहीं आया। जो इसको थोड़ा बहुत इसको क्रिटिकल एंगल से देखते थे, उन्होंने भी कहा कि पढ़ने में बहुत मजा आया।
यस सर। और सर जैसे कि आप लिखते हैं तो क्या आप किताबें वगैरह भी पढ़ते होंगे, तो आपकी फेवरेट जो लेखक है वो कौन है? देखिए, मैंने अंग्रेजी के राइटर्स का से मैंने बता दूं पहले। हिंदी के राइटर्स तो हमारा फेवरेट जो प्रेमचंद है, ये है, निर्मल वर्मा है। मैंने अपनी हिंदी किताब उनको समर्पित भी की थी। तो ये लोग हैं, इनको मैं बहुत पसंद करता हूँ। प्रेमचंद को, निर्मल वर्मा को पसंद करता हूँ। बहुत सारे पोएट्री वाली किताबें भी पसंद करता हूँ, जैसे निराला है, मुक्तिबोध है, ये सबको भी मैं पसंद करता हूँ। तमाम लोगों को पसंद करता हूँ। अंग्रेजी का मैंने पढ़ा था, जो उपन्यास जो पढ़े थे, और जो जिसका स्टैंडर्ड था, वो जो मेरे मन में वही बना रह गया। जैसे वुदरिंग हाइट्स से मैंने शुरू की थी किताबों को पढ़ना। एमिली ब्रोंटे की किताब से मैंने शुरू की थी। और एमिली ब्रोंटे की किताब, सर्वेंटीज की किताब मैंने पढ़ी थी, वो डॉन क्विक्सोट। वार एंड पीस पढ़ी थी। डेड सोल्स पढ़ी थी। ये यस सर। ब्रदर्स कर्मजो पढ़ी थी। वो हरमन हेस की ग्लास बीट गेम पढ़ी थी। यस सर। तो और भी तमाम किताबों को मैंने पढ़ा था। फ्लेवेयर की किताब पढ़ी थी, ये मैडम बुवारी, ठीक है, मैडम बुवारी, जिस पर वो यस सर। उपन्यास ये भी बना हुआ है। तो इस तरह के मैंने बहुत सारे 10 एक उपन्यास, बहुत अच्छे क्लासिक उपन्यास पढ़ने के बाद मुझे लगा कि उपन्यास अगर लिखा जाए तो उसका स्तर यही होना चाहिए। यस सर। और कुछ आप कहें? सर मेरे साइड से तो इतना ही था। आपको अगर और भी कुछ ऐड करना है तो आप प्लीज बताइए। दैट इज ऑल अभी के लिए। दिस दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और Thank you for giving me a chance to interview you. certainly, I hope that we will meet again. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Namaste. Namaste.